Virgo. Hello and welcome to my channel. My name is Yashika. I am a professional tarot card reader, and today I have a reading for you for the month of May 2024. Virgo, today I'm going to be looking at your career, your finances, and your love life. And without further ado, let's begin with your career. मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि आपकी लाइफ में द नंबर 5 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी द नंबर 5 represents planet Mercury. That is a very nice thing because Virgo, your sign is also ruled by the planet Mercury, and I do see that in the month of May you are receiving a blessing from the planet Mercury itself, and that blessing for you is a growth in your subconscious mind. क्योंकि हो सकता है when it comes to your career ना you limit yourself a lot. हो सकता है कि शायद किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से या आपकी जो करंट इमोशनल स्टेट होती है एट वन पर्टिकुलर मोमेंट आप उस चीज़ को ना अपना करियर पे इफेक्ट लाने देते हो. But please, I think what the blessing which the planet Mercury is going to give you in the month of May is the blessing of constant work. दूसरी blessing ये है कि with the 7 of Pentacles you are going to be looking at things very very clearly. क्यों? क्योंकि प्लैनेट मर्करी जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी माइंड को भी रूल करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू वुड बी एबल टू आस्क योर सेल्फ, यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि यार मेरी खुद के ऐसे कौन से सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मेरे खुद की ऐसी कौन सी लिमिटेशंस हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ या मैं काम कर सकती हूँ. एंड लुक, 8 of Pentacles, you would be working on those shortcomings on yourself when it comes to your career. क्योंकि हो सकता है कि right now you are going through a time period जो अगर मैं तीसरे इंसान के नज़रिए से देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार इसकी लाइफ में तो ये भी है, बट अगर मैं इंटरनली देखूं देन इट इज़ नॉट, यू डोंट फील इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू. दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वो वाली सिचुएशन चल रही है अभी इस टाइम पे, बट इंटरनली ओनली यू नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम पीरियड व्हेन इट कम्स टू योर करियर. एंड आई डू फील कि थोड़ा सा लेजीनेस हो रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में फिर से घुस गए हों, एंड दैट इज द ब्लेसिंग दैट द प्लैनेट मर्करी इज गोइंग टू गिव यू कि आपको ना उस प्रोक्रास्टिनेशन, उस लेजीनेस से बाहर निकालेगा. Virgo, planet Mercury, that is the blessing that is coming. I want to check more cards for your career. And देखो Virgo, with the 7 of Pentacles ना, the goals that you want to achieve, जिस तरीके के आपके सपने हैं, जो desires हैं, वो सब ना within reach है. Nothing is too far from your reach, Virgo, and you can absolutely, I think you are waiting for something to come into your life, waiting for an opportunity. But let me tell you something, Virgo, when it comes to career, you have free will. Virgo, no matter what you choose, see, you have to think about it very very practically, your career. And I think कि आप बहुत टाइम से, मतलब एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये जो पूरा मरकरी रेट्रोग्रेड गया है अभी पिछले 25-26 दिन का, आपने ना बहुत ज़्यादा अपने करियर को इमोशनली सोचा है कि मुझे इमोशनली फुलफिल क्यों नहीं कर रहा है, एंड वो इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी भी था. बट राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर प्रैक्टिकली सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. That is also the blessing that is coming with the planet Mercury. You would be thinking about your career very very practically. As I was saying, you could be waiting for any opportunity to come to you, but Virgo, you have free will in your career and you are the one who will create your own destiny when it comes to your career. I have one more card, the Knight of Pentacles, and the Knight of Pentacles is clarifying the Three of Swords. अभी ना जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, दैट अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, द हर्मिट, गो, ऑफ कोर्स द हर्मिट क्योंकि वर्गो है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, go
and make your own opportunity. I think you would be able to do it if you sit down and think about it. अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्गो, आपकी इंट्यूशन अपने काम को लेके ना बहुत बहुत स्ट्रांग है, एंड इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर, प्लीज डू नॉट लिसन टू एनीबडी एल्स, ओनली यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू. एंड विद द हर्मिट हियर, अगर आप शांत बैठ के मे बी help yourself process those feelings of uncertainty, and जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, अपने आप को बैठ के ना ये बात समझाओ कि यू डू हैव फ्री विल व्हेन इट कम्स टू योर करियर. एंड विद द हर्मिट आप अकेले बैठ के ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, क्लैरिटी विल स्टार्ट कमिंग इमीडिएटली. एंड let me just pick one more card for your career, Virgo. For the month of May, काफ़ी मुझे ना आपके करियर, फाइनेंसेस एंड इवन योर लव लाइफ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है उन चीज़ों में. तो उस वजह से ना मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, तो ट्राई टू लिव इन दैट वन पर्टिकुलर मोमेंट. आई थिंक जो मई का महीना है ना, वो आपको ये सिखाएगा कि सिर्फ फ्यूचर के बारे में ना सोच के सिर्फ इस मोमेंट में कैसे जिया जाएगा. इवन व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोच के इस मोमेंट में आपको क्या हैप्पी कर रहा है, इस मोमेंट में क्या सही है, choosing that in this very moment, that's going to help you. See, being in the moment, being in the present and not thinking about the future is going to help your career a lot, क्योंकि यहाँ पे 10 of Pentacles है. When it comes to your career, Virgo, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये भी हो सकता है that the work that you are doing वो जेनरेशनल काम हो, कि आपके फादर ने भी किया हो, आपके ग्रैंडफादर ने भी किया हो, या फिर आपके मटरनल साइड में उन्होंने किया हो, तो जेनरेशनल काम हो सकता है. एंड ये भी हो सकता है दैट यू डोंट वांट टू डू इट एनीमोर, यू वांट टू क्रिएट योर ओन पाथ, यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन. व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड आई थिंक यू विल डू समथिंग ऑफ योर ओन. अगर आपको अपने वैसा काम करके खुशी नहीं मिल रही है, then do not do that work, because I think with the Wheel of Fortune and the 10 of Pentacles, you are going to create your own opportunity, as I told you before. एंड आपके करियर में तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा इन द नेक्स्ट कमिंग 3 months, वर्गो. क्योंकि जो अगले 3 महीने है ना, आप आज से, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, लगा लो एग्जैक्ट आज से लेके एग्जैक्ट 3 months बाद, your career is going to be on a much different path, and you would also be earning a good amount of money at that point of time. Those 3 months, the next 3 months are actually very crucial for you, Virgo, आपके करियर के लिए. And as I told you, do not wait for any opportunity to come to you. Go out, meet new people. And I think कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम आइसोलेशन में बिता लिया है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ ये सोचने में बिता दिया है कि इफ़ नॉट दिस वर्क देन व्हाट, अगर ये नहीं तो क्या. एंड आई थिंक कि इट इज़ हाई टाइम व्हेन यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि ये नहीं तो क्या, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी प्रॉब्लम फोकस्ड, आई वॉन्ट टू बी सोल्यूशन फोकस्ड. तो आप बाहर निकल के ना, यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोरिंग. आई थिंक इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मई के महीने में आपके लिए इसीलिए भी रहेगी because you are just exploring too many things at once, and that is a good thing. Virgo, that was for your career. Now let us move on to your finances. मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई आपसे मई में लोन मांगने आता है, कोई रिश्तेदार भी हो जो आपसे बोले कि मुझे इतने पैसे दे दो एंड आई विल रिटर्न इट टू यू, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू नॉट गिव anyone any kind of loan. मतलब कि अगर आपको लोन देना ज़रूरी भी है ना, मतलब कि एक ऑब्लिगेशन लगती भी है, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बिग अमाउंट हो, उस मनी को या उस चीज़ को ना ऐसे देना, ऐसे माइंडसेट के साथ देना कि वो शायद आपके पास कभी वापस ही ना आए. तो मतलब सिर्फ गिव दैट मनी जो आपको पता है कि वापस नहीं आएगी भी तो मेरा काम चल जाएगा. सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कमिंग अप वेरी वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपको ना, समवन विल ट्राई टू स्कैम यू, समवन विल ट्राई टू
कम इन टू योर लाइफ एंड मतलब बहुत ही पपी डॉग आइज बना के प्लीज गिव मी मनी, प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस वर्क, प्लीज हेल्प मी आउट इन माई करियर, प्लीज हेल्प मी विद माई वर्क, डू नॉट डू इट। क्योंकि देखो एट द एंड क्या होगा ना, वो आपको ड्रेन करके छोड़ देगा एंड यू वुड मतलब आप ना खुद के काम से फोकस हटा के आप उस चीज पे लग जाओगे। डू नॉट डू इट। कोई आपसे लोन मांगे बिल्कुल मत देना, क्योंकि यू विल एक्सपीरियंस लॉस इफ यू गिव समवन एनी काइंड ऑफ लोन, यू विल एक्सपीरियंस लॉस। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसे पैसे देना जो अगर आपकी लाइफ से चले भी जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ यू गिव मनी विद दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, देन 6 of Wands, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक कि फॉर योर फाइनेंसेस वर्गो, एक ना हो सकता है बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मनी, नॉट टू बिग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ मनी यू वुड बी स्पेंडिंग ऑन योर फ्यूचर। नाउ आई सी दैट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। तो हो सकता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। सो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट दैट आई सी जो आप किसी एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करोगे जो आपको अभी रिटर्न नहीं देगा, बट आपको वो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगा। हाउएवर बिसाइड्स दैट आई डू नॉट थिंक कि आपका कोई फालतू खर्चा होगा। आई डोंट थिंक कि आप अननेसेसरीली कहीं भी किसी से मिलने जाओगे या फिर अननेसेसरीली किसी भी चीज़ पे स्पेंड करोगे। इनफैक्ट आई डू थिंक कि आप रादर सेव करोगे, आप स्पेंड नहीं करोगे ज़्यादा। बट एक वो जो लोन वाली जो बात मैंने बोली है उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना उस चीज़ पे। ये हो सकता है कि आपने अगर 2-3 साल पहले किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो, देन आपको शायद ना उस चीज़ के रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स मिल जाए, तो मतलब मई, जून एंड जुलाई। तो हो सकता है दैट दोज इन्वेस्टमेंट्स आर गिविंग यू a good return in the coming 3 months. One thing I do see is कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे डेफिनेटली खर्चा करोगे, एंड दैट खर्चा could be on grooming yourself. It could be about going to the gym, yoga, pilates. It could also be skincare, makeup. It could be body care. तो मतलब कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है that you would be spending that kind of money on self care. तो हो सकता है that you end up going to a spa and getting a good massage. तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लग रहा है दैट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, बेसिकली अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए यू स्पेंड सम मनी ऑन दैट, एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। ट्रस्ट मी, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू स्पेंड ऑन योरसेल्फ। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स हाउएवर, आई डू सी कि सम ऑफ यू वुड ट्राई टू फिल अ फॉर्म। किसी चीज़ को लेके आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करोगे, तो इट कुड बी अबाउट मे बी यू वांट टू गिव अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड उसके फॉर्म्स आप फिल करो, या फिर अपने एजुकेशन के लिए, डिस्टेंस लर्निंग के लिए आप जैसे अपने फॉर्म्स फिल करो। बट वो जो आप फॉर्म वगैरह फिल करने की कोशिश करोगे ना, आई डोंट थिंक कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज यू मे नॉट गेट the kind of results that you are expecting with that. See, I think कि वो ये जो भी आपने सोचा है ना कि ओके आई वांट टू इन्वेस्ट इन दैट एंड आई वांट टू स्टार्ट दैट, मेरे को वो चीज़ सीखनी है नाउ, आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो फॉर इट जस्ट नाउ। आई थिंक यू शुड वेट 1 more month। शायद आपको जून या जुलाई तक वेट करना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, या फिर किसी भी तरीके का फॉर्म फिल करना है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और एनीथिंग लाइक दैट। एंड आई नो कि उनकी पर्टिकुलर डेट्स होती हैं, बट इफ़ यू कैन प्लीज़ वेट टिल जून or July. Virgo, that was it for your finances. Now I want to move on to your love life. We are moving on from somebody, 8 of Cups and the Death. तो ये भी हो सकता है कि एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो आपको लग रहा था कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, but it really was not a good relationship and now you are moving on from that. तो आपकी रिलेशनशिप में ना पिछले maybe in the last 7 to 8 months बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अलग भी हो गए हों and now you are looking for something new. ये भी हो सकता है that you already
met someone very recently but they have ghosted you, या फिर you have ghosted that person, and क्योंकि यहाँ पे conversations तो हुई हैं but इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि for someone to stay, you know. But I have the sun card. Now the sun card is actually the most positive card in the entire tarot deck. Sun card के साथ हमारे पास यहाँ पर temperance भी है, so there is a balance of emotions. I know Virgo की पिछले कुछ time से, especially in the last 8 months, you have been struggling so much in your relationships, especially in your personal relationships, and time अच्छा नहीं था for your love life. बट फाइनली आई थिंक कि आपने ना उस चीज़ को बहुत खुले दिल से अब एक्सेप्ट कर लिया है कि यार जो है वो है। इससे ज़्यादा आप अपनी पास्ट रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाल सकते थे, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। जितना आपने किया दैट वाज इनफ एंड यू वर इनफ वर्गो, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड। नाउ यू हैव एक्सेप्टेड द डार्क एंड द लाइट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रिलेशनशिप। आई थिंक कि अभी धीरे धीरे करके आपको ना अपने बारे में भी ये पता लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप्स में आपकी कहाँ गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेंस भी है। When it comes to your relationships, you have a pretty good balance of what is real and what is not. You have a pretty good balance in realizing कि कहाँ पर इमोशनल होना है एंड कहाँ पे प्रैक्टिकली सोचना है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग। यहाँ पर डेथ एंड टेम्परेंस को भी अगर मैं साथ में देखूँ, डेथ एंड टेम्परेंस, तो यू नो कि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स को लेके, उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया है, उन्होंने आपको क्या लेसन्स दिए हैं, एंड दोज लेसन्स हैव हेल्प्ड यू a lot in coming to this position of your life where you have understood and accepted and surrendered to what life has to offer for your love life, and that is beautiful. Oh, look, the Lovers card. This is, I feel like your reading, your love life reading is more about self-love rather than loving up someone else, because with the Lovers and the Sun, the Temperance, and these, you know, it just feels like you, in the month of May, you are really learning how to have more self-respect for yourself, how to love more, how to love yourself more, and how to look at that Two of Cups. You know, now it makes me think that you are actually ready for a good relationship in the month of May. You can meet somebody, not gonna lie, you can meet someone in the month of May, and that relationship has long-term potential. And I remember that in the month of April, I told you that you are going to meet someone, and ये भी हो सकता है कि आप उस इंसान से मिल चुके हैं, and your relationship will jump to a new level in the month of May. Six of Wands. So, oh my God, are you getting married? Are you getting married? रिश्ता पक्का हो गया है क्या आपका? Because it feels like it has. And it's like if you have already met someone, Virgo, it's like that is going to be very serious. तो आपकी शादी तक बात पहुंच सकती है. Virgo, that was it. Thank you so much for joining me today. And I am always available on Instagram as yashika.tarot for a personal session. Thank you so much. I hope you enjoyed the video because I really enjoyed reading for you. And if you liked the video, do share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.